everyone, this is Vinod Badal, your online tutor, and today we will do Unit 4 of your practice book titled Comparisons. So, without any delay, let's start. Worksheet 1. Explorer Bernard Hughes undertook an expedition to the frozen lands of Siberia in the Arctic region. After coming back, he gives a real-life account of his experience to his son Harry. Given below is the letter that Harry has written to his best friend Jamie. Read the letter with your partner and notice carefully how the underlined words have been used. देखिए एक यहाँ पे लेटर दिया गया है जो कि हैरी ने अपने फ्रेंड जेमी को लिखा है. Dear Jamie, I just cannot wait to share this with you. My daddy went to Siberia to dig out the most ancient creature that roamed the earth more than 20,000 years ago. This creature is called the woolly mammoth. Daddy says that it was even larger than the dinosaur in size and older in existence. In fact, both of them were good friends. In the snow-covered lands in the Arctic, Daddy had to travel to the farthest corners with some scientists to excavate the carcass of one of the biggest monsters. The ears of the monsters were smaller than those of today's elephant. After the digging was over, a giant Russian helicopter lifted the frozen elephant. It was the heaviest cargo that it had ever lifted. Phew, 23 tons. Now the permafrost of the mammoth has been shifted into a deep cave. Hundreds of hair dryers are melting the permafrost to help the scientists to have a look at the giant monster with the longest tusks. Love, Harry. So, students, what you have to do? You have to just focus on underline words. Most ancient, larger, older, farthest, biggest, smaller, heaviest, deep, giant, longest. Now choose and tick the correct answer from those given in the brackets. The woolly mammoth is the animal that roamed the earth. तो जब भी द लगा हुआ होता है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं हम, और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट एंसेंट. आगे हम चल करके अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी. मैमथ्स आर इन एग्जिस्टेंस देन द डायनासोर. जब भी आपको देन दिख जाए तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर. Mammoths had tusks than those of today's elephants. तो यहां भी देखिए देन है, जिसके वजह से कंपैरेटिव डिग्री हमको चूज करना है. तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है. तो यहाँ पे लॉन्गर को हम यहाँ पे टिक करेंगे. The Russian helicopter had lifted many loads earlier, but this was one of the heaviest. द है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. The mammoth now rests in a cave where the permafrost around it is being melted. Here you have to tick deep, positive degree. Note that the answers except 5 you have ticked help in making comparisons between people and things.
There are 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। रिमेंबर, इसको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स टेक ER फॉर द कंपैरेटिव एंड EST फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। ज्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें अगर हम ER जोड़ देते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, जबकि EST जोड़ देने पे वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड में हमने ER जोड़ा और ये बन गया ओल्डर, और फिर ओल्ड में हमने EST जोड़ा तो बन गया ओल्डेस्ट। ओल्ड इज पॉजिटिव, ओल्डर इज कंपैरेटिव एंड ओल्डेस्ट इज सुपरलेटिव। उसी प्रकार फार, फार्दर, farthest. If the words ends in E, we add R or ST. जब कोई वर्ड E से खत्म होगा, मतलब अगर वर्ड के लास्ट में अगर E रहेगा तो कंपैरेटिव के लिए हम R जोड़ेंगे और सुपरलेटिव के लिए ST जोड़ेंगे। जैसे कि सेफ, सेफ में हमने R जोड़ दिया तो बन गया सेफर, और फिर EST जोड़ देने से बन गया सेफेस्ट। तो सेफ, सेफर, सेफेस्ट। ठीक उसी प्रकार लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इफ द वर्ड एंड्स इन कंसोनेंट प्लस Y, we change Y to IER और IEST। इसको आप सिंपली इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव Y पर खत्म होगा और उस Y के पहले एक कंसोनेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे इजी वर्ड दिया हुआ है तो ये लास्ट में इसमें Y है, लेकिन Y के पहले S है और S क्या है, ये है कंसोनेंट। तो कंसोनेंट प्लस Y, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, Y को हम I में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, Y को I में चेंज कर देंगे और उसके बाद ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से Y को I में चेंज करके EST अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव। इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक उसी प्रकार हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। बट if the word ends in vowel plus Y, we add ER and EST. लेकिन अगर कोई वर्ड Y से खत्म होता है लेकिन Y के पहले वॉवेल आ जाता है तो फिर ये पहले वाला जो अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था ये उस पे अप्लाई नहीं होता है। वैसे कंडीशन में हम Y को I में चेंज किए बगैर ही हम ER और EST जोड़ देते हैं। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। In the case of small words with a single consonant at the end, we double the consonant and add ER and EST. जब एडजेक्टिव बिल्कुल स्मॉल होता है और वो सिंगल कंसोनेंट से खत्म होता है, जैसे कि यहाँ पे बिग है तो यहाँ पे G जो है ये एक कंसोनेंट है और सिर्फ एक ही यहाँ पे कंसोनेंट है, तो वैसे केस में इस कंसोनेंट को हमको डबल कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे BIG बिग है, अब यहाँ पे देखिए BI हो गया और उसके बाद फिर ER और EST जोड़ देना होता है। उसी प्रकार से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ऑल द लॉन्गर वर्ड्स टेक मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो स्मॉल वर्ड्स के लिए तो हमने रूल नंबर 4 देखा, तो स्मॉल वर्ड्स के लिए हमने रूल नंबर 4 देखा जहां पे कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं। लेकिन रूल नंबर 5 में जहां पे वर्ड हमारा बड़ा होता है तो कुछ नहीं करते, बस कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उस वर्ड के पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में उस वर्ड के आगे
मोस्ट लगा देते हैं, तो बन गया आपका इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केयरफुल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल. Worksheet 2. Work with your friends in group of 4. Many children vote on the internet site www.india.chimps.com every day on various issues. Given below is the percentage of votes for and against a particular issue. Using the clues given alongside, compare the responses and complete the sentences. Champa Cola is dash than Pepsi. तो यहाँ पे देखिए यस 78% है, नो 20% है और कांट से 2% है. यहाँ पे देखिए देन लिखा हुआ है और जब भी आप देन देख लीजिए ना, समझिए कि वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है. टेस्टी का कंपैरेटिव वर्ड होता है टेस्टियर. जेके रोलिंग इज अ डैश राइटर देन एनिड ब्लाइटन. तो यहाँ पे भी देखिए देन आ गया, बस देन देखे और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ पे लगाए, मोर फेमस. रोशन कैन गिव अ डैश परफॉर्मेंस देन शाह आलम. यहाँ भी देखिए देन है और देन है मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे पावरफुल से हो जाएगा मोर पावरफुल. कॉमिक्स आर द फनीएस्ट ऑफ ऑल द बुक्स एंड मैगजीन्स. फनीएस्ट कैसे हुआ? जब हम द देख लेंगे तो द के बाद हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे. ये आपका ट्रिक है. डायमंड्स आर डैश देन गोल्ड और ब्रैकेट में दिया था कॉस्टली. यहाँ पे देन देख लिए मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, तो वर्ड आ गया हमारा कॉस्टलियर. नाउ लुक एट नॉटी कंपैरिजंस. There are some naughty comparisons. These words just do not follow any rule. यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, बल्कि इन्हें हमें बस याद रखना पड़ता है. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, ओर्स, ओर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मच और मेनी, मोर, मोस्ट. Worksheet 3. Rajat and Sonali have won a debate competition. They are throwing an ice cream party for their friends. Given below is the ice cream card of Dairy Fun by Quality Ice Cream. See it carefully. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं चोकोबार्स, बार्स, स्टिक्स, कप्स, कैसेटा, मैक्स बिस्किट्स, कॉर्नेटो, ब्रिक्स, ये सारे आइसक्रीम के टाइप्स हैं. Now complete the conversation between Rajat and Sonali to decide the ice creams to be selected. Use the naughty comparisons wherever possible. Rajat: I just don't believe that we have won. Sonali: that's the best thing that has happened to us this month. Rajat: the wait for the results was worse than anything else. Now for the party, which ice creams would you like? Sonali: I think bricks would be better than cups. They will cost less too. Rajat: but what about orange bars? All my friends say that sticks are the best. They all enjoy eating them. Sonali: I think orange bars are the worst. They hurt the throat. Rajat: but we can't leave them out completely. We will have less orange bars than cups. Sonali: that's all right, but we will also buy the new ice cream, Max biscuits. My many friends say that they have the most wonderful taste one can think of. Rajat: I'd rather prefer chocolate cornetto cones. Sonali: aha, they are the most wanted. Now you are talking like my friend. Read what an eye doctor is saying to the audience all over the world. Let us pledge to donate our eyes after death. The person who would get them would be
as good as the rest of us. Donating the eyes is not so easy as it seems to be, but someone has to take the first step. In the sentences spoken, we have used as good as and not so easy as. Remember, we use as to show that two things are similar in some way. जब हमको लगेगा कि दो चीज बिल्कुल एक तरह के हैं तो हम as का यूज करेंगे. We use not so as and not as to show that two things are different in some way. अगर हमें लगेगा कि दो चीज बिल्कुल अलग अलग हैं तो हम not so as और not as का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा. This house is as small as ours. तो यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी है तो सिमिलैरिटी के लिए यहाँ पे as का यूज हुआ है. मैथमेटिक्स इज नॉट सो इजी एज साइंस. तो यहाँ पे डिसिमिलरिटी को शो करने के लिए नॉट सो एज का इस्तेमाल हुआ है. मैथमेटिक्स इज नॉट एज इजी एज साइंस. यहाँ भी नॉट एज का यूज हुआ है डिसिमिलरिटी को शो करने के लिए. नाउ कम टू वर्कशीट 4, सुपरलेटिव क्विज टाइम. Who is the tallest child in the class? तो ये आपके क्लास का किसी भी बच्चे का नाम हो सकता है जो कि आपके क्लास में बिल्कुल टॉलेस्ट हो, उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे. मैंने ऐसे ही यहाँ पे रोहित लिख दिया है. Which is the fastest airliner in the world? And answer is Concorde. Which animal has the longest tusk? Elephant. Which planet is the nearest to the Earth? Venus. Which is the tallest building in the world? Answer is Burj Khalifa. Which is the biggest continent on the earth? Answer is Asia. Which is the smallest continent on the earth? It is Australia. Which is the highest mountain peak of the Himalayas? And answer is Mount Everest. Worksheet 5. The Olympics 2012 were held at London, the UK. The performance of the top 5 countries is given below in a tabular form. तो ये देखिए यहाँ पे किस कंट्री ने कितने मेडल जीते हैं उसका एक यहाँ पे चार्ट है. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 46 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 29 और ब्रॉन्ज 29 और टोटल इनका हो गया 104. उसी प्रकार से बाकी कंट्रीज के भी दिए गए हैं. नाउ इसके आधार पे हमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है. द यूएसए वॉन द largest number of gold medals. द लगा हुआ था तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को चूज कर लेंगे. तो लार्ज का सुपरलेटिव हो जाएगा लार्जेस्ट. रशिया वॉन डैश ब्रॉन्ज मेडल्स देन. ब्रैकेट में दिया हुआ फ्यू और यहाँ पे दिया हुआ देन, मतलब कि हमें चाहिए फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री जो कि होता है फीवर. The United States of America won as dash silver medals as bronze. Many दिया हुआ है और many का हमको पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे यूज होगा तो many का many ही रह गया. The United States of America won dash medals then. अब यहाँ पे then लग गया और यहाँ पे हम देख लिए many, तो many के लिए कंपैरेटिव डिग्री more होता है. बस कितना आसान था. The United States of America won डैश गोल्ड मेडल्स देन. यहाँ पे देखिए देन लगा हुआ है और यहाँ पे दिया मैनी. बस इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे तो मैनी का हमको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री तो वो होता है मोर. तो सिंपली हम बस एक ये ऑप्शन और यहाँ पे क्लू देख करके हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगना है. डू इट योरसेल्फ. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव्स or their comparative superlative form. Popular, which is the, यहाँ पे द लग गया मतलब कि हमको चाहिए अब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे. तो वर्ड क्या है पॉपुलर. पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर. बस आगे हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा. विच इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया. वर्ड है कोल्ड. दिसंबर इज डैश देन फेब्रुवरी
यहाँ पे हमने देख लिया देन, तो समझ गया कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए मेरे को, तो कोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री होता है कोल्डर, तो कितना आसानी से ये भी हो गया। एडजेक्टिव इज गुड, हेल्थ इज ऑलवेज डैश देन वेल्थ, यहाँ भी देन है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, तो गुड का बेटर होता है। शार्प, योर नाइफ इज नॉट सो शार्प एज माइन, तो जब नॉट सो यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव डिग्री चाहिए और शार्प का शार्प ही होगा। टॉल, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज नॉट एज टॉल, एज आ गया तो पॉजिटिव डिग्री, तो टॉल का टॉल ही होगा, एज द कुतुब मीनार। ब्यूटीफुल, विच ऑफ द टू पेंटिंग्स इज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे दो पेंटिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा दिए। इंटेलिजेंट, आइंस्टीन is considered to be the most intelligent scientist of our times, यहाँ पे द लगा हुआ है और द के बाद हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो इंटेलिजेंट का होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको करवाना जरूरी है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे मैं समझा देता हूं। गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, ये 4 लोगों के ग्रुप एक्टिविटी है। फॉर ईच एडजेक्टिव गिवन इन द एड बॉक्स, एवरी ग्रुप मेंबर गिव 1 नाउन, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, इन एडजेक्टिव्स के लिए एक साथ में नाउन जोड़ना है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना है। आफ्टर यू हैव ऑप्शंस विद यू, यूज एनी वन कंपैरिजन टू राइट योर ऑन पोएम। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके दोस्त इन एडजेक्टिव्स के लिए जो नाउन दिए हैं, तो उसमें से किसी एक को लेकर के आपको कोई पोएम बना देना है।